दिया, मैं प्रकट हो गई। मैं कहने वाली थी अभी। नहीं, हम तो ये कहते हैं बड़ी लंबी उम्र है। हाँ बिल्कुल। नाम लेते ही हाजिर, यानी बड़ी लंबी उम्र है। बिल्कुल। धन्यवाद। मैं फोन एक्चुअली चार्जिंग पे लगा रखा था साथ साथ, तो इसलिए स्क्रीन ऑफ थी। मोनिका जी, इज शी बट यस, कमिंग इट्स टुडे? टाइम टू स्टार्ट। चेक चेक। मोनिका जी आ रही हैं? सुना है ना? Don't know, let me check. शी hasn't responded, right? Okay, Dr. Gurpreet is back after a long time. इतना लॉन्ग टाइम हो गया दीदी। मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने नहीं देखा तुम्हें। पता है मुझे लॉन्ग टाइम हो गया, ज्यादा ही कुछ। ज्यादा ही कुछ। That's right. Okay, let me share the pages. Okay. So my English screen is visible to everyone. Yes. Yeah. So Rena, आपने एक बारी पूछा उनसे, मोनिका जी से, and then we can start otherwise. I'm calling her up only. मैं देख रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। Who else is there? Gurpreet is there. Meenakshi, say hi Meenakshi. Hello Poonam. Right. So, हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली क्या चीजें कर रहे हैं। तो सबने अपनी अपनी शेयरिंग्स हमारे साथ शेयर किया था कि प्रैक्टिकल लेवल पे क्या क्या चीजें हैं जो वो यहाँ से विड्रॉ करके और उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब किया है। सो एवरीवन वाज एबल टू शेयर। और तब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा से मतलब जब भी करते हैं सेशन तो आई री लिसन इट। तो सम एक्सर्प्ट्स बीच में से मैं सुनती हूँ। मुझे उसमें से एक बात जो मिस हो गई थी वो ये थी, मोनिका जी ने कहा था कि इसको अगर हम लिख सकते हैं कि सबने अपनी अपनी शेयरिंग की थी, वन लाइनर और टू लाइनर के रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ का 1 to 2 लाइनर लिखा जाए। एंड आई थिंक एवरीवन वाज एबल टू शेयर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। आई हैड केप्ट इट ओपन दैट डे। The role of spirituality. But those who were not able to share, please do reflect on the same. And we're going to have another session also, क्योंकि उस सेशन के बाद मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक आया था सबसे कि बहुत अच्छा था। मतलब everybody was so interested and was feeling good about diving deep about the role of spirituality in their lives in whatever extent they have been dealing with or they have been following it. So बहुत अच्छा था, and we would like to keep it again also, more information, to have more insights and to have more discussion on the same topic. So we'll let you know when we are going to have that session in the coming week. All right, shall we start, Sunaina? I think we shall start because she's not answering the call. I don't know whether when Okay. she'll see my message and call, she will just revert back. I think Sheetal and me, we can explain. Sheetal, are you there to explain? I'll read it Okay, I'll out. take it up. Yeah. All right, I'll start with the English and then you can read out, Sunaina, as like we do. You can read the Hindi and then explain. You or Sheetal, Yeah. you can like Sure. explain it. Right. Sure. Let's start from page number 174, English version. Tushar, if you can slow down the music at your back. If you are running a business. Okay, so this was which paragraph? New disciples, third one from the top. All right. New disciples often join Sri Yukteswar in exhaustive criticism of others. Wise like the Guru, models of flawless discrimination, but he who takes offensive should not be defenseless. The Karpik students themselves fled precipitately as soon as Master publicly unloosed in their direction a few shafts from his analytical quiver. Tender inner weaknesses, revolting at mild touches of censor, are like diseased parts of the body, recoiling before even delicate handling. This was Sri Yukteswar's amused comment on the flighty ones.
Many disciples have preconceived image of a guru by which they judge his words and actions. Such persons often complain that they did not understand Sri Yukteswar. Neither do you understand God. I retorted on one occasion, if a saint were clear to you, you would be one. Among the trillion mysteries, breathing every second, the inexplicable air, may one venture to ask that the fathomless nature of a master be instantly grasped. Over to you, Sunaina, and I'll share the Hindi screen. Yeah. Yeah. श्री युक्तेश्वर के नए शिष्य. श्री युक्तेश्वर जी के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों की सांगोपांग आलोचना करने लगते, जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी निर्दोष विवेक की मूर्तियां हों। परंतु जो आक्रमण करता है उसे अपने बचाव की भी पुरजोर व्यवस्था करनी रखनी चाहिए। गुरुदेव ने जैसे ही उन पर छिद्रान्वेषी शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्कश से कुछ एक तीर सबके सामने चला दिए, सब रॉकेट के समान वहां से भाग निकले। उन भगोड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी विनोद पूर्वक कहते हैं, आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी बिदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के उन रोगग्रस्त Do you want me to read? Do you want me to read? For a while, if you can. हाँ, आप पानी पी लो. ओके. उन भगौड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी विनोद पूर्वक कहते थे, आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी बिदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के उन रोगग्रस्त अंगों के समान है जो जरा सा हाथ लगाने से ही झटका मारकर पीछे हट जाते हैं। अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में एक पूर्व निर्धारित कल्पना होती है जिसके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को आंकते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः यह शिकायत रहती थी कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए और ना ही तुम ईश्वर को समझते हो। एक अवसर पर मैं बरस पड़ा, तुम यदि एक संत को समझ पाते तो स्वयं संत बन जाते। सृष्टि के अरबों रहस्यों का भेद हम जान नहीं पाए, यहाँ तक कि प्रति क्षण हम जिस हवा का श्वास लेते हैं वह हवा भी हमारे लिए अगम्य है। तब भी कोई यह सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अथाह स्वभाव का ज्ञान उसे तत्क्षण हो जाए। यहाँ तक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं, if you can scroll up. So I don't see Monica ji here, so we will take up जितना हम कर पाएंगे अच्छे से। पिछली बार हमने ये देखा कि श्री युक्तेश्वर जी एक्चुअली सॉरी बोल गए जब उन्हें लगा कि उनके फादर के सामने उन्होंने एक्चुअली उनकी तारीफ नहीं की, उनके क्रिटिसिज्म बाहर आ गए। एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है गुरु का, तो वो सोच रहे थे कि चलो फादर के सामने उन्होंने जब नहीं उनकी तारीफ की तो उन्होंने वापस आके उनके सामने जब नजरें मिलाई तो वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे, रादर उन्होंने क्षमा याचना की थी। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ उनके बारे में बताया गया है कि श्री युक्तेश्वर जी के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों के सांगोपांग आलोचना करते थे। मीन्स एक दूसरे से कंपैरिजन कि भाई गुरु किसको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे, किसकी तारीफ हो रही है, नहीं हो रही, किसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। तो शिष्य आपस में एक दूसरे की आलोचना करते थे। लेकिन यहाँ है कि जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी निर्दोष विवेक की मूर्तियां हो। अगर एक इंसान का विवेक मर जाए तो वो मूर्ति के समान ही है। तो अगर गुरु के समान आप ज्ञानी भी हो और अगर आप विवेक, यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि गुरु के समान ही ज्ञानी निर्दोष विवेक की मूर्ति है। उसके विवेक का गुरु के सामने उसका विवेक इतना ज्यादा निखर के नहीं आता जब तक वो एक चरम सीमा पे अचीव नहीं कर लेता। लेकिन जहां पे कोई आक्रमण करता है
उसे अपने बचाव का भी पुरजोर व्यवस्था, मींस अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप डिफेंसिव भी होगे, आपको अपने बचाव की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। यानी कि आपको अपने गुण अवगुण अपना, वो कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता होनी चाहिए। अगर कोई आप पे कोई टिप्पणी करता है, जैसे यहाँ कई शिष्य एक दूसरे को करते थे कंपैरिजन में, तो जब कोई आपके लिए कुछ बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि बदले में, नॉट बदला एज इन बदला रिवेंज वाला नहीं, बट इन रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स में मेरा क्या एक अपना स्टैंड होना चाहिए, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो गुरुदेव ने जैसे ही उन परछिद्रान्वेषी शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्कश से कुछ एक तीर सबके सामने चला दिए, सबके सब रॉकेट के समान वहां से भाग निकले। तो एज इफ आपके पास कोई, जैसे कहते हैं ना, आपकी तर्कश में बहुत सारे तीर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि जहां वो एनालिसिस करते थे, एक इंसान को परखते थे, जब उन्होंने अपने शिष्यों को परखने वाले तीर चलाए, उन्होंने ये बोला कि भाई फला फला में ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या तुम यहाँ ठीक नहीं हो, वहां ठीक नहीं हो, यानी कि सबको उनकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताने जब चालू किए, तो सब ऐसे रॉकेट के समान वहां से भाग गए। क्योंकि उनको, जैसे कहते हैं ना, तलवार चलती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वैसे कि सारी चीजें तीर के समान, तीर चलते ही किसी चीज को भेद देता है जैसे। तो ऐसे ही उनके सामने सच और झूठ पर्दाफाश हो गया, उनको भी पता चल गया कौन कितने पानी में है, क्योंकि गुरु ने सबके सामने ही उन शिष्यों पर अपनी एनालिसिस बता दी कि तुम सबके बारे में मेरा एनालिसिस ये है। और फिर वो सब भाग जाते हैं। उन भगौड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, यानी कि अपनी टिप्पणी देते हुए, अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन बताते हुए, श्री युक्तेश्वर जी विनोद पूर्वक कहते हैं, वेरी पोलाइटली वो कहते हैं कि आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी जो इंसान बिदक जाता है, वो संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के, यानी कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और आप क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते, तो आप उस पर्टिकुलर डिजीज के समान हो, उस पर्टिकुलर डिजीज्ड ऑर्गन के समान हो, जिसको हाथ लगाओ और वो एकदम से पीछे हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे तो दर्द हो रही है, मुझे तो चुभ रहा है। यानी कि एनी पर्सन हु कम्स टू यू और आपको कुछ वो आपके बारे में कोई भी किस्म का फीडबैक दे, आप अगर उस चीज के लिए फीडबैक लेने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप उस डिजीज्ड ऑर्गन की तरह हो। क्योंकि वो डिजीज्ड ऑर्गन अगर फीडबैक ले ले तो वो अपनी मरहम पट्टी कराने दे। यानी कि हम भी अगर फीडबैक ले ले इंसान के रूप में, तो हम भी अपने अवगुणों पे काम करें, हम भी अपने कमियों को दूर करें, हम भी अपने रोगों की, मानसिक जो कहते हैं ना थॉट्स के रोग जो हैं, उनकी मरहम पट्टी करें। तो अगर कोई इंसान फीडबैक को भी अच्छे से नहीं ले सकता, और यहाँ तो हल्के से स्पर्श की बात हुई है, मीन्स एक छोटा सा फीडबैक, हल्का सा भी फीडबैक दिया तो वो तिल मिला रहा है कोई अगर शिष्य, तो वो उस ऑर्गन की तरह है, एक डिजीज, एक घायल या वुंडेड जिसे कहते हैं ऑर्गन की तरह है, जिसे मरहम पट्टी से भी डर लग रहा है कि मुझे तो ठीक होना ही नहीं, मुझे छुओगे तो मैं तिल मिला जाऊंगा। तो अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में एक पूर्व निर्धारित कल्पना होती है, जिसके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को आंकते हैं। जब हम भी स्कूल कॉलेज गए हैं, कभी किसी ने कह दिया ओ तुम नई क्लास में आ रहे हो, अब आप कई बार कहा सुनी होती है ना, दूसरों से सुनने में आ जाता है और पता चलता है फला फला टीचर ऐसा है, तो आप एक प्री कंसीव्ड नोशन बना के चलते हो कि उस टीचर के ऐसे ट्रेट्स हैं। यानी कि अब क्लास में उसके रिस्पॉन्स को उन ट्रेट्स पे जज किया जाता है कि अगर किसी ने कहा है ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, ये तो बहुत खिंचाई करती है, ये तो बहुत डांटेंगी, ये तो मतलब बख्शेंगी नहीं, ये तो बिल्कुल लीनियंसी नहीं है, ये तो नंबर भी बहुत काटेंगी, अगर ऐसा करके किसी ने आपके मन में धारणा बना दी, तो आप उस शिक्षक को अपनी इन्हीं, ये कहते हैं ना, इन्हीं लेंस से, इन्हीं नजरों से देखोगे, इसी पर्सपेक्टिव से देखोगे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हर बंदा जो होता है ना, शिष्य जो होता है, एक पूर्व निर्धारित कल्पना के आधार पर गुरु को आंकता है कि गुरु के शब्द मुझे ये क्यों बोले गए, उनके कार्य ऐसे थे तो वो जरूर इस पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रायः ये शिकायत रहती थी कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए। अब जिस टीचर को तो आप प्रिडिक्टेबल होगा, पता लगा पाओगे कि इस टीचर ने ना इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करना है, अगर होमवर्क की कॉपी नहीं गई है पूरी करके तो उसने फुट्टा मार ही देना है, जैसे हमारे जमाने में तो पिटाई अलाउड थी। तो भाई अगर आपको पता है टीचर प्रिडिक्टेबल है, तब तो आप उसको मतलब आप प्रिपेयर्ड जा सकते हो। श्री युक्तेश्वर जी के साथ ये सब बच्चों को और शिष्यों को दिक्कत आ रही थी, या शिकायत कंप्लेन आ रही थी
कि ये इतने अनप्रिडिक्टेबल है कि हमें ऐसा लगता है हम इन्हें अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। हम कैसे माने कि हम इन्हें समझ गए हैं? समझ ही नहीं आता। कभी तो ये अपने तरकश में से बाण चला देते हैं आलोचनाओं के, कभी ये आके सॉरी भी बोल रहे हैं उनको, योगी जी को। तो वो इतने मतलब मिस्टीरियस थे, वो इतने ऐसे थे कि एक पहेली की तरह, कि उनको समझना इतना आसान नहीं था। वो जितने सुलझे हुए थे उतने ही उलझे भी हुए थे लोगों के सामने, उनके शिष्यों के सामने। आगे है कि और ना ही तुम ईश्वर को समझते हो। एक अवसर पर मैं बरस पड़ा, कि तुम लोग तो भगवान को भी नहीं समझते। तुम्हें अगर युक्तेश्वर जी समझ नहीं आ रहे, ये उन शिष्यों से बात हो रही है, मतलब उनका रेफरेंस है यहाँ पे, कि जब वो शिष्य आपस में एक दूसरे की आलोचनाएं कर रहे हैं, तब ये योगी जी बोलते हैं कि तुम लोग तो भगवान को भी नहीं समझते हो, ईश्वर को भी नहीं समझते हो। तुम यदि एक संत को समझ पाते तो तुम खुद ही संत नहीं बन जाते। कि तुम लोगों को युक्तेश्वर जी इसलिए समझ में नहीं आ रहे क्योंकि तुम उस लेवल पर खुद ही एलिवेट ही नहीं हुए हो। क्योंकि अगर तुम उन्हें समझने लायक समझ होती तुम में, तो तुम में और उस संत में फर्क ही क्या होता? वो इंसान संत इसलिए है क्योंकि उनमें वो समझ है, वो उतने ऊपर हैं। और अगर हमें उस एक संत को समझने की समझ आ जाए तो हम खुद ही संत बन जाए। सृष्टि के अरबों रहस्यों का भेद हम जान नहीं पाए। यहाँ तक कि प्रति क्षण हम जिस हवा का श्वास लेते हैं, वह हवा भी हमारे लिए अगम्य है। हम ले रहे हैं ऑक्सीजन रोज, पर हमें ये भी नहीं पता उसके साथ साथ हम क्या क्या इनहेल कर रहे हैं। कितनी चीजें हैं प्रकृति की जो साथ में जा रही है। हम मिट्टी की खुशबू भी इनहेल कर रहे हैं, हम पेड़ फूल पौधों पत्तियों की सुगंध भी महसूस कर रहे हैं, पर वहां हमारा ध्यान नहीं जाता। ये हमारी माइंडफुलनेस नहीं है। तब भी कोई ये सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अथाह स्वभाव का ज्ञान उसे तक्षण हो जाए, कैसे? मतलब इतना आसान है। जब आप जिस एनर्जी को इनहेल कर रहे हो, जिस ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हो, आप उसकी डेप्थ में भी नहीं जा पाते हो। आपको यही नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से कण हैं, कौन कौन से आप अगर सनलाइट होती है ना, बड़ा मजा आता है। घर की खिड़की से जब सनलाइट अंदर आती है, तो उन किरणों में कुछ कुछ चलता हुआ दिखता है। तो मेरी छोटी बेटी है, वो पूछती है कि मम्मी ये क्या दिख रहा है। मैं कहूंगी बेटा ये पार्टिकल्स हैं, दीज कुड बी डस्ट पार्टिकल्स, इट कुड बी जर्म्स, ये कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दीज आर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। बट सनलाइट में कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं जिनका साइज शायद एक नेकेड आई के लिए ठीक है, बाकी चीजें नहीं दिख रही। यानी कि चीजें सृष्टि में सामने होकर भी, प्रकट होकर भी विजिबल नहीं है, प्रकट नहीं है। तो जब हमें एक ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, हम जो श्वास ले रहे हैं, उसकी भी अंदर कितनी मिस्ट्री है, उसके अंदर भी कितनी सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जब बारिश होती है, सौंधी सी खुशबू आती है, तो हमें मिट्टी की खुशबू पता चलती है। माचिस की तीली कोई जलाए तो पता चलता है जी हाँ, माचिस की खुशबू आ रही है। तो हर खुशबू अलग लगती है, पर सांस वही हमारे एनवायरनमेंट की है। जब हम एक जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट का ही एनालिसिस ढंग से नहीं कर सकते, तो ये तो एक सिद्ध पुरुष है। इनके स्वभाव, इनका अथाह स्वभाव, जो उस चीज का ज्ञान ज्ञान पा लेना ही, मतलब इट्स इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। बहुत बड़ी बात है ये। आई थिंक हमने आगे का भी पढ़ा है ना, तुषार? वंडरफुल एक्सप्लेनेशन शीतल, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। इसको हम बाद में भी टेकअप करेंगे, कुछ दो तीन पॉइंट्स मुझे भी लगे कि डिस्कस करने हैं, तो वील डिस्कस इट लेटर, अदरवाइज वो छोड़ Shraddha, देते हैं। you can, I think you can share it now as well because वो I हाँ, think वी कैन ऐड टू इट। पैराग्राफ में फ्लो बना हुआ है और इससे रिलेटेड है, तो you can go ahead. आई थिंक जो ये दो चीजें हैं, कि जब परमहंस योगानंदा जी ने जब पूरा कंप्लीटली सरेंडर किया, तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस बिना सरेंडर के नहीं आता है, और सरेंडर बिना एक्सेप्टेंस के नहीं आता है। ये दोनों मतलब एक ही कॉइन के, मतलब दे बोथ साइड एक्चुअली, कि वो इनकम्प्लीट है। मतलब एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब अभी वो ज्ञान में आए हैं, नॉलेज में आए हैं, और आने से पहले ही उनमें इतना एक्सेप्टेंस है कि वो उनकी बात की गहराइयों को भले ही उस लेवल पे समझ नहीं पा रहे हो, बट उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस है कि, और सरेंडर भी है कि जो मेरे गुरु कह रहे हैं वो मतलब बिल्कुल सही ही है, वो हमारे भले के लिए है। और वो मतलब मैंने कितने मेंटर्स के साथ, जैसे हमारे भी मेंटर्स रहते हैं, और जब उनसे बातचीत होती है तो उनके पास एक अलग पैरामीटर होता है चीज़ों को जज करने का, चीज़ों को एनालाइज करने का, जो कि उस समय बिकॉज हम लोग एज अ लेमैन हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो टूल्स और पैरामीटर्स नहीं होते हैं। शायद शीतल या तुषार या आई थिंक आप लोग भी इससे रिलेट कर
पा रहे होंगे जब कोई मेंटर आपको एनालाइज करता है, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को एनालाइज करने की कोशिश करता है, तो उनके पास पूरे टूल्स होते हैं और उनको पता होता है कि फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग, हम कहाँ से आ रहे हैं, कितना हमारा इवॉल्वमेंट हुआ है, कितनी हमारी ग्रोथ हुई है, बीट बी अ मतलब साइकोलॉजिकल ग्रोथ, बीट बी अ सोल ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं एक मेंटर को पता लग रही होती है और हमारे रिएक्शंस और हमारे रिस्पॉन्सेज बता रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे एक बात रिलेटेबल लगी। और सेकंड थिंग इज़ कि जो उन्होंने कहा कि फीडबैक ये हमारी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट होता है। अगर कोई मेंटर की भी अगर हम बात नहीं करते हैं, यूजली भी अगर कोई फीडबैक है और जैसे हमें लगता है कि कोई बात हमें गलत लग रही है, किसी का बिहेवियर से रिलेटेड या किसी के एक्ट या कंडक्ट से रिलेटेड, और हम वो फीडबैक हमारे लिए हमें लगता है कि यार अगर इसको ये फीडबैक ले ले और ये इम्प्लीमेंट कर ले तो कितना अच्छा ही हो जाएगा। तो मतलब सिचुएशन बेटर हो सकती है, बिहेवियर बेटर हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस बेटर हो सकता है, बिकॉज मतलब ये एक्चुअल में ये एक डिजीज की तरह है। और अपनी लाइफ से अगर हम इसको रिलेट करते हैं कि कोई पर्सन अगर फीडबैक ही नहीं ले रहा है, मतलब सपोज अ पर्सनस बिहेवियर इज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल, कोई ना कोई सिचुएशन है और आप मतलब फीडबैक दे ही नहीं पा रहे हैं उसको, तो राइट उसके लिए भी डिजीज है। और आई थिंक क्षितिज की क्लासेस में, क्षितिज जो हमारे मेंटर हैं उनका कुछ कोर्स लिया हमने, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ। मतलब वो भी यही बता रहे थे कि मतलब फीडबैक देना और लेना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फीडबैक देना भी एक आर्ट है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द पर्सनस पर्सनालिटी की फीडबैक देने से पहले उस पर्सन को हम एनालाइज जब करते हैं एंड जब वो कला सीख जाते हैं तो फीडबैक देना भी आ जाता है। सॉरी, या सो आई थिंक ये मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगा कि बहुत हमारे एनवायरनमेंट में हम बहुत ऐसा लगता है कि कई बार हम मतलब ऐसा वाला फीलिंग भी आता है कई बार कि सिक माइंडेड लोगों से बात कर रहे हैं, बट हालांकि ये फीलिंग अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। दे आर ऑल्सो लाइक अस, बट हाँ, दे माइट नॉट बी नोइंग वट यू नो। एंड जैसे अपने मेंटर्स को सुनने के बाद या जैसे श्री युक्तेश्वर जी को सुनने के बाद, मतलब वो इतनी एक्सेप्टेंस के अंदर हैं कि एक्सेप्टेंस से ही वो उनको पता है कि मतलब अगर फीडबैक आ रहा है तो वो मेरी करेक्शन के लिए आ रहा है। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल मुझे पॉइंट लगा इस पूरे पैराग्राफ में कि मतलब अगर मेंटर आपको फीडबैक दे रहा है तो इट मीन्स मतलब वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, वो हमारे लिए ग्रोथ में एड ऑन करने वाला है। और आई थिंक वो फीडबैक ज़रूरी हो सकता है हमारे लिए उस सिचुएशन में, जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो हमारे मेंटर्स देख पा रहे होते हैं। सो फॉर्चुनेट आर द वन आई मीन हु हैव द मेंटर्स इन देयर लाइफ, एंड whosoever are having any mentor, so I think we should take advice from this book कि फीडबैक्स लेना और देना दोनों ही आर्ट है, और हमें खुद के लिए भी फीडबैक लेना और समझना ज़रूरी है। जब हम भी लेते हैं तो हम किसी को कहने वाले बनते हैं, मतलब या हमारे पास एक छोटा सा राइट आ जाता है कि हाँ यार मैं फीडबैक लेती हूँ और मैं देने का राइट रखती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई हमें फीडबैक दे रहा है तो वी शुड बी ओपन अप टुवर्ड्स दोज फीडबैक्स, क्योंकि ये बहुत इंसाइटफुल हो सकते हैं, लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं और एड ऑन भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। या राइट, थैंक यू सो मच। Thank you. Wonderful. Thank you, Surena and Sheetal. Let's progress and move. Students came and generally went. Those who craved an easy path, that of instant sympathy and comforting recognitions of one's merits, did not find in at the Hermitage. Master offered his disciples shelter and shepherding for the aeons, but many students miserably demanded ego balm as well. They departed, preferring before any humility life's countless humiliations. Sri Yukteswar's blazing rays, the open penetrating sunshine of his wisdom, were too powerful for their spiritual sickness. They sought out some lesser teacher who, shading them with flattery, permitted the fitful sleep of ignorance. During my early months with Master, I experienced a sensitive fear of his reprimands. I soon saw that his verbal vivisections were performed only on persons who, like myself, had asked him to discipline them. If any reading students made a protest, Sri Yukteswar, unoffended, would fall into silence. His words were never wrathful, but impersonal with wisdom. Master's rebuke were not aimed at casual visitors. He seldom remarked on their defects, even if conspicuous. But towards students who sought his counsel, Sri Yukteswar felt a serious responsibility. Brave indeed is the Guru who undertakes to transform the crude ore of ego-permitted humanity. A saint's courage is rooted in his compassion for Maya bewildered men, the stumbling eyeless of the world. Over to you, Sheetal.
Yeah, I'll read it out. So, या सुना ना. yeah. We read it अनेक शिष्य. till उससे. अच्छा. अनेकों शिष्य आते रहे और सामान्यतः जाते रहे, जो आसान मार्ग चाहते थे, जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले और उनके गुणों की सुखद सराहना हो. उन्हें श्री रामपुर आश्रम में निराशा ही हाथ लगती थी. गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रय और अनंत काल तक संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, परंतु अनेक शिष्य संकीर्ण वृत्ति से अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे. विनम्रता की अपेक्षा जीवन की असंख्य अवमाननाओं का वरण करके वे आश्रम छोड़कर चले गए. उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर ज्ञान किरणें उन्हें उनके लिए दुस्सह थी. वे अपेक्षाकृत साधारण कोटि के किसी ऐसे गुरु को खोज निकालते थे जो उन्हें झूठी खुशामदी बातों की छाया प्रदान कर अज्ञान की अशांत निद्रा में सोने देता. शीतल, अभी करें या फिर अभी should I या go with it? एक एक करके ही लेते हैं. All right. Yeah, over to you then. So, थैंक यू. अनेकों शिष्य आते रहे और सामान्यतः जाते रहे. मतलब आना जाना तो एक गुरुकुल का पार्ट है, बहुत आए बहुत गए. लेकिन जो आसान मार्ग चाहते थे, जिन्हें डिसिप्लिन और स्ट्रगल, हार्ड वर्क और खास तौर से कंसिस्टेंसी में परसिस्टेंस दिखाना, यानी कि नॉन स्टॉप लगे रहना, गुरु की बात मानना, इस तरह की चीजों से प्रॉब्लम थी, या उन्हें कंफर्ट चाहिए था कि इजी इजी, जैसे कहते हैं ना, स्कूल एसी वाले स्कूल मिल जाए, आराम से एजुकेशन हो जाए, वैसा वाला. उनको आते ही, जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले कि टीचर आए, पुचकारे, बहुत कंपैशन से बात करे कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, और उनके गुणों की सुखद सराहना हो. मीन सराहना तो हो, पर उनके कानों को भी और मधुर लगे, कि बहुत ही शुगर कोटेड वर्ड्स में अगर उनकी तारीफ की जाए. तो ऐसे शिष्यों को, उन्हें श्री रामपुर आश्रम में निराशा ही हाथ लगती थी. क्योंकि एक समझने वाली बात यह है कि अगर कोई इस तरह का शिष्य है जिसको एक गुरु बस पैम्पर ही कर रहा है, तो वो घर में भी पैम्पर हो रहा है, गुरुकुल में भी पैम्पर हो रहा है, हर जगह अगर उसको पैम्परिंग मिल रही है, तो कहते हैं ना कि अगर आप पौधे को बार 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 पानी से सींचते जाओ, उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं. फिर जब कभी भी लाइफ में, कहते हैं ना, स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स के थपेड़े पड़ते हैं, कोई स्टॉर्म आती है, कोई 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 विपदा आती है, ऐसी स्टॉर्म्स के लिए उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती, कि दैट प्लांट विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड दैट स्टॉर्म. वो नहीं उस स्टॉर्म के लिए रेडी है. तो अगर वो रेडी नहीं है, यानी कि उसका कैरेक्टर ही बिल्ड नहीं हुआ. अगर उसका कैरेक्टर उतना बिल्ड नहीं हुआ, तो उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो वो सीखने आया है. इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पे इस तरह के स्टूडेंट्स को निराशा ही हाथ लगती थी, क्योंकि जो वो एक्चुअली पाना चाहते थे ना, वो इतनी पैम्परिंग और बार बार पानी और उस तरह की अपब्रिंगिंग से नहीं होना था. तो गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रम और अनंत काल तक संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे. उनकी कमिटमेंट पूरी थी. उनका एक संकल्प था, मेरे शिष्यों को मैंने अनंत काल तक संरक्षण देना है, गाइडेंस देनी है, उनका पाथ लाइटन अप करना है. वो अगर कोई मार्गदर्शन चाह रहे हैं, तो आई शुड बी देयर फॉर हिम और हर. तो जनरली अभी आजकल हम सुनते हैं कभी सदगुरु जी को, मैंने कहीं ना कहीं उनको भी सुना जब उन्होंने ये बात कही है कि मैं अपने जाने के बाद भी कुछ हजारों साल तक जो लोग मेरे साथ अभी एसोसिएटेड है ना, मैं उनकी टेक केयर करने वाला हूं, आई इन स्पिरिट फॉर्म. ऐसा एक मिस्टिक का कहना है. तो अगर कोई इन बातों की गहराई में जाए, तो यहाँ युक्तेश्वर जी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो तो रेडी थे मार्गदर्शक बनने के लिए, परंतु अनेक शिष्य संकीर्ण वृत्ति से अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे. यानी कि उन्हें ईगो मसाज तो चाहिए, जैसा यहाँ इंग्लिश में आया था कि ईगो बाम चाहिए होता था उनको. वो बहुत ही मतलब अपने जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक एक कि भाई डिसिप्लिन तो दो, लेकिन साथ साथ तारीफ भी करो कि हाँ भाई तुमने तो इस डिसिप्लिन को बड़ा अच्छा खूबी से निभाया है. तो कहीं ना कहीं उनको ईगो मसाज चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजिकल नीड होता है, नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, कि मुझे महत्व मिले, मुझे एक रिकॉग्निशन मिले, मुझे कुछ
फील हो कि आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो उनकी वो नीड पूरी होती है जब कोई उनको ईगो मसाज करता है। तो ऐसे भी शिष्य थे जो बड़ी माइजर तरीके से, बड़े कंजूसी से उनको लगता था कि कुछ और करे ना करे, मेहनत करे ना करे, मगर हमें तारीफ पूरी मिलती रहे। विनम्रता की अपेक्षा जीवन की असंख्य अवमाननाओं का वर्णन करके वे आश्रम छोड़कर चले गए। तो ह्यूमिलिएट भी हुए उन्होंने, ह्यूमिलिटी से काम नहीं लिया, यानी कि बहुत विनम्रता से काम नहीं लिया, विनम्रता को यूज नहीं किया, पोलाइटनेस को यूज नहीं किया। अपना कहते हैं ना, जो दरख्त सीधा खड़ा रहता है, जब मौका आता है वही कटता है, लेकिन जिस पे फल लगे होते हैं वो झुकता है, वो बेंड होता है। तो ये वो लोग थे जो विनम्र होना ही नहीं चाहते थे, वो ऐसे थे जो आश्रम छोड़कर चले गए। उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर ज्ञान किरणें उनके लिए दुस्सह थी। यानी कि वो उस स्पिरिचुअल पावर को लेने के लिए उनकी आंखें चुंधिया जाती थी। उनकी 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 जो सन से निकली हुई, जैसे कहते हैं ना, सूर्य के समान जो, अगर सूर्य से किरणें निकल रही हैं, कितने लोग हैं जो सूर्य में आंख में आंख मिला के देख सकते हैं? हम लोग उस ब्राइटनेस को, उस कहते हैं ना, उस तरह की पावरफुल ऑरा को एक्सेप्ट करने के लिए और अब्सॉर्ब करने के लिए शायद रेडी ही नहीं होते। खासतौर से इस प्रकार के जो शिष्य थे, वे अपेक्षाकृत साधारण कोटि के किसी ऐसे गुरु को खोज निकालते जो उन्हें झूठी खुशामदी बातों की छाया प्रदान कर अज्ञान की अशांत निद्रा में सोने देता। मतलब उनको ऐसे गुरु चाहिए थे जो इस सनशाइन से तो उनको नहीं जगा सकते, क्योंकि ये उस सनशाइन को लेने के लिए रेडी ही नहीं थे। ये नहीं थे रेडी कि इतना चकाचौंध, इतना दिव्य ज्ञान इनको प्राप्त भी हो सके। तो ऐसे लोगों को, फ्लैटरी करने वाले, बटरिंग करने वाले, उनको उस तरह के गुरु मिल जाते थे, वो उनकी खुशामदी करते थे। अब इस तरह की खुशामदी उनको अज्ञान की ही छाया देती थी और एक अशांत निद्रा में सोने देती। अब क्यों अशांत निद्रा? कि अगर वो सोते भी होंगे ना कहीं उनकी नींदें, वो कहते हैं ना स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि मुझे वो तो नहीं मिल रहा जो मुझे यहाँ मिल सकता था। शायद मैं इस चीज के, मतलब उनकी खोज नहीं पूरी होगी। उनको दिक्कत रहेगी कि जो स्पिरिचुअल चीज के लिए हम इस राह पे आए थे, वो हम अभी भी उससे मीलों दूर है। तो उस तरह की अशांत निद्रा में उस तरह के गुरु ने सोने देते थे। जी सुनैना, यू कैन कंटिन्यू। या श्योर। And I'm गुरुदेव के loving साथ Monica ji is here. Monica ji, welcome. We were missing you, and I'm trying to my best to role play you. And अब you आप did आ it गई हैं, आप wonderfully. अपनी कमान संभालिए। You did it wonderfully, Sheetal. And amazingly, you are speaking in Hindi. थैंक यू, थैंक यू। Really. Oh, तुम्हारा I speak चेहरा both देखकर लगता है languages. कि तुम बस इंग्लिश अच्छी बोल सकती हो, बट तुम तो कह हिंदी रही भी हो। बहुत अच्छी बोलती हो. It मोनिका was जी आपसे सीख amazing. रहे हैं। Very beautiful, very beautiful. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. बहुत थैंक यू। सुंदर. अब आप कमान संभालिए, आगे के जी पैराग्राफ जी आपके मुंह से सुनेंगे। जी. थैंक यू। राइट, ग्रेट। मोनिका जी आपका असर है ये। नहीं बिल्कुल, नहीं, आपसे सबका सीख अपना रहे हैं। अपना असर है. जी. चलिए यस सुनैना, कंटिन्यू गो करते ऑन। हैं। या गुरुदेव के साथ आरंभ में कुछ महीनों तक मुझे उनकी फटकार का सदा भय लगा रहता था, परंतु शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि उनकी यह शाब्दिक चीरफाड़ केवल उन्हीं लोगों पर की जाती थी जिन्होंने मेरे समान ही उनके अनुशासन की मांग की थी। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी उसका तनिक भी बुरा न मानते हुए मौन हो जाते थे। उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था, बल्कि ज्ञान की लिप्तता होती थी। गुरुदेव की फटकारों की दिशा कभी आगंतुकों की ओर नहीं होती थी। उनके दोष स्पष्टता प्रकट हो रहे हों तब भी उनके बारे में वे शायद ही कभी कुछ कहते, परंतु जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व गंभीरता से लेते थे। वह गुरु सचमुच बड़ा साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेता है। माया में किंग कर्तव्य बहुत डिफिकल्ट शब्द है। विमूढ़. कर्तव्य विमूढ़। विमूढ़. किंग कर्तव्य विमूढ़
उन्हें हम्म। संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है। जी। जी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ जी। गुरुदेव के साथ आरंभ में कुछ महीनों तक उनकी जो फटकार थी उससे उनको डर लगता था, बिकॉज उनको लगता था कि पता नहीं डांट रहे हैं, या ऐसी कल्पना वो कर कर नहीं आए थे कि मुझे यहाँ पर डांट भी पड़ सकती है। परंतु धीरे धीरे उनको लग गया कि ये बस शाब्दिक चीरफाड़ी है। उनका जो मंशा है, उनका जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो हमारी चीरफाड़ करना नहीं है, हमें ज्ञान देना है। क्योंकि गुरु का पर्पस समझ में आ गया। एक होता है गुरु हमेशा इंसल्ट करता रहता है और क्रिटिसाइज करता है, टॉन्ट मारता है, उसका पर्पस ही होता है इसको टॉन्ट मार के मैं क्षत विक्षत कर दूं। और एक होता है कि गुरु इसलिए क्रिटिसाइज करता है ताकि तुम बेटरमेंट की तरफ जाओ। वो हमें गुरु की वाणी से समझ में आ जाए। हम सब उस दौर से गुजरे, हम सबको ये समझ में आ जाता था कि कौन सा टीचर हमें डांट रहा है और वास्तव में हमसे प्यार करता है, और कौन सा हमें परेशान करने के लिए डांट रहा है। तो इनको ये समझ में आया कि परेशान करने के लिए नहीं डांट रहे, बल्कि ये शाब्दिक चीरफाड़ जो करते हैं ना, वो उन्हीं से करते हैं कि जिनसे उनको अनुशासन चाहिए होता है। और यदि कोई बहुत ही मर्माहत, बहुत ही दुखी शिष्य अगर कभी प्रतिवाद कर देता था, भाई गुरुजी आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हो या ऐसा कुछ, तो वो बुरा नहीं मानते थे कि तुम प्रतिवाद क्यों कर रहे हो, तुम गुरु से ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तहजीब नहीं है। वो मौन हो जाते, शांत, क्योंकि उनका पर्पस हो चुका है, उनका काम हो चुका है। उनका काम था उसको डांट कर सही रास्ते पे लाना, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब उन्होंने बहस नहीं करनी उनके साथ, मौन हो जाते थे। उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था, ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि वो कभी भी क्रोध नहीं दिखाते थे। हाँ, वो पर्पसफुल गुस्सा दिखाते थे, शब्दों से कई बार आहत करते थे, वो भी अच्छे डिसिप्लिन की वजह से कि आप डिसिप्लिन में आओ। पर ज्ञान की अलिप्तता होती थी, क्रोध नहीं होता था, क्रिटिसाइज करते थे उस वो भी ज्ञान की वजह से, मतलब ज्ञान में लिप्त क्रोध करते थे कि ये करने से उनके ज्ञान में वृद्धि हो। और गुरुदेव की फटकारों की दिशा, कभी भी जो गेस्ट आते थे, आगंतुक आते थे, गेस्ट उनके लिए नहीं होती थी, उनके लिए वो मतलब कभी दोष दिख भी रहा होता था किसी आगंतुक में, जैसे जनरली होता है हम जब गुरु संस्थानों में जाते हैं तो हमारा उठने का तरीका, ध्यान करने का तरीका, बैठने का तरीका, प्रसाद लेने का तरीका, मतलब हमारा कई बार अनाड़ियों की तरह होता है। क्योंकि हर जगह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि सीधे हाथ से प्रसाद लेना चाहिए, उल्टे हाथ से ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, ऐसे कुछ प्रथाएं होती हैं। इन सभी योगिक संस्थाओं की अपनी अपनी होती है। तो कई बार आगंतुक, एज आगंतुक जो कभी कभी मौज मस्ती घूमने फिरने पर्यटन के लिए जाते हैं, वो गलती करते हैं, पर वो उनको नहीं डांटते थे। देखते भी थे कि आंखों के सामने गलती हो रही है, पर वो उनको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनको पता था ये तो कुछ क्षण के लिए आए हैं, फिर ये यहाँ से चले जाएंगे। और मेरा पर्पस इनको सुधारना है भी नहीं। मैं तो उन्हें सुधारूंगा जो मेरे पास अपना तन मन धन छोड़कर मेरे पास एक विश्वास से आए हैं कि हमें प्रभु तक पहुंचना है। और वो रास्ता आसान नहीं है, कंकड़ भरा रास्ता है, क्योंकि प्रभु तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ पाना नहीं होता, बहुत कुछ छोड़ना होता है। और भौतिक जगत में बहुत कुछ पाने की लालसा होती है, पाने की लालसा तो भौतिक सुख मिलता है। यहाँ पर जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको भी छोड़ने के लिए बोलते हैं तो प्रभु मिलते हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। तो उनके बारे में वो कभी कुछ नहीं कहते थे, पर जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनकी ठुकाई अच्छे से होती थी। वे अपना उत्तरदायित्व बहुत गंभीरता से लेते थे। और वह गुरु सचमुच बहुत ही साहसी होता है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु, यानी कि हम अहंकार लिप्त मतलब मुकुंद, अहंकार लिप्त मतलब उनके शिष्य जो अहंकार में लिप्त कच्ची धातु की तरह उनके पास आते हैं, तो ये बहुत ही चैलेंज होता है एक गुरु के लिए। मतलब टेढ़े मेढ़े पत्थरों को आकार देके वो मूर्तियां बनाते हैं, कोयले जैसे धातु जैसे व्यक्तित्व को वो तराश कर हीरा बनाते हैं। तो ये इसके लिए गुरु को अपने आप में मतलब बहुत ही एक एक लेवल होना चाहिए गुरु के पास, तभी वो ये कर पाएगा, या पुचकार पुचकार कर वो प्रभु तक ले जा सकता है। क्योंकि ये यात्रा ये कठिन होती है, यात्रा आसान नहीं है, ये यात्रा कठिन है, वाकई में कठिन है ये यात्रा। जब सब चीजें आप छोड़ते हो ना और सारी दुनिया वो चीजें ले रही होती है और आपने भी ली होती है कई कई सालों तक, तो ये यात्रा है। अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना एक यात्रा होती है, उसी की कोशिश वो कर रहे थे। और वे सचमुच बहुत साहसी थे।
जो कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्यभार अपने हाथ में लेकर बैठे थे। इसीलिए उनको सख्त भी होना पड़ता था, कठोर भी होना पड़ता था, कभी कभी वो अबव द लेवल भी हो जाते थे। तो वो कहते हैं कि अभी जो शीतल जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि जिनको लगता था वो ये डांट फटकार सह पा सकते हैं, वो वहां रुक जाते थे। जिसको लगता था कि नहीं भाई, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, मैं इस हॉस्टल में नहीं रह सकता, यहाँ का वार्डन बड़ा टाइट है, और उसके पेरेंट्स तुरंत लेने पहुंच जाते हैं। आपने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, डांट कैसे दिया ग्राउंड में, हम अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। 10 लाख रुपए एडमिशन फीस दे के भी बच्चा वहां से निकाल के वापस ले आते हैं, क्योंकि पीटी टीचर ने ग्राउंड में बच्चे को ऊंची आवाज में बोल दिया, बच्चा लेट पहुंचा था। बच्चे ने कहा टीचर मेरे को हमेशा डांटते हैं, जबकि टीचर का पर्पस डिसिप्लिन हो सकता है। तो वही सेम चीज यहाँ भी थी। आजकल आधुनिक कॉलेज हो गए तो चीजें थोड़ी चेंज हो गई, बट पर्पस गुरु का, टीचर का, एक अच्छे टीचर का पर्पस यही होता है कि मैं बच्चे को तराश दूं, और जो बच्चा संयम रख लेता है वो फिर आगे निकल भी जाता है। जी मैम। I think we shall stop here today only, Tushar, because 7:45 is already here. And 2-3 minutes हम silence के लिए भी देंगे, फिर discussion में भी लगेगा time. तो I think let's stop it here. We can. Yeah. We can. Yeah, yeah. Let's have a 2 minute of silence time, and then we can have this platform to share reflections. And Meenakshi has a question which Sunana has already read. We'll share that as well after 2 minutes. Thank you. Welcome back, everybody.
Can I please have everyone on screen? Welcome, Yeah, those who are really are not in a position or are occupied somewhere, not to be able to come on screen, that's okay. But otherwise, I would appreciate everyone to be on screen so that we can see all the beautiful faces. Monica ji is there, Yogini ji, Gurpreet, Sheetal, Sunaina, Shashi aunty, Alka ji, Ashwinder ji, Meenakshi ji, Sonal. गुड, कितना अच्छा लग रहा है सभी, सबको सुंदर सुंदर चेहरे देख के मजा आता है. All right, good. Let's resume and let's start with the reflections. मोनिका जी, आप कौन सी गैलरी में खो गई हैं? काफी लंबी चल रही हैं, कहीं बाहर है क्या? मैंने कहा गैलरी में चल रही हैं या गाड़ी में है? Bhumika ji, let's have the reflections. Monica ji, you're on mute, and please share the reflections. Yeah, Monica ji, would you like to start, or I mean, we can have it from everyone. Ashwinder ji, Sapna ji, those who have not shared or who seldom share, मजा आएगा कि आज वो लोग भी बोले जो बहुत कम बोलते हैं. अश्विंदर जी स्माइल कर रहे हैं, पकड़े गए. नहीं नहीं, मैं बस वही सुन रही थी कि गुरु की बात जरूर सुननी चाहिए और माननी चाहिए, कुछ भी हो जाए. मतलब मुझे वो लगता है, बिल्कुल चुप करके बिल्कुल बिल्कुल उनको हाजिर नाजिर समझ के कि वो भगवान है हमारे, और उन्होंने ही हमें जैसे वो भव सागर से पार उतारना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि हम जैसे हम मेंटर्स होते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो यही कहा जाता है कि हम जरूर उसको सही तरीके से फॉलो करें, उसको जीवन में उनकी जो टीचिंग्स को वो अपनाएं, और बस दैट विल बी इनफ टू, मतलब बेड़ा पार जैसे कहते हैं ना, लगा that's देते हैं right, क्वेश्चन. that's right. या A complete surrender towards the guru or the god, which is required if you really want to build yourself and if you really want to grow, then you must have a complete surrender. बिल्कुल गुरु के पास पूरा complete समर्पण दे देना चाहिए. नो इफ एंड बट्स. No offense. Thank you. थैंक यू. Beautiful. Thank you, Ashwinder ji. Thank Alka ji, would you like to share? हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि एक्सेप्टेंस और सरेंडर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्सेप्टेंस होगी तभी सरेंडर आएगा, और बिल्कुल. तभी नो इफ्स और नो बट्स आएंगे. Very nice. ये जब तक मतलब ये होना बहुत जरूरी है, और हमें इसमें कोई इफ बट नहीं करना चाहिए कि हमारा गुरु हमें डांट रहा है, वो हमारी पॉलिशिंग के लिए हमें डांट रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. That's right. That's so true. Thank you, Alka और ji. फीडबैक भी जैसे बताया आपने, जी. फीडबैक लेना भी एक बहुत आर्ट है कि हमें कोई कह रहा है, हमें क्रिटिसिज्म लेनी भी आनी चाहिए, और स्पेशली गुरु से, बिल्कुल हमारे मेंटोर से. बिल्कुल. True. अगर वो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो किसी अच्छे चीज के लिए कर रहा है. Right. बिल्कुल, that's right. And we must understand when we are being criticized by our mentor or coach, जिसको हमने एक्सेप्ट करके सरेंडर कर दिया है, तो वो जो भी कह रहा है तो उस पे एक कंप्लीट फेथ के साथ हमें देखना चाहिए वो क्या कह रहा है, और जो उसके मोटिव है, उसका इंटेंट है बिहाइंड दैट क्रिटिसिज्म, व्हाट इज दैट मोटिव बिहाइंड दैट. या राइट. गुड. थैंक यू अलका जी. ओके, सपना जी. यस, जैसे इसमें मुझे यही समझ में आया कि गुरु का तो हमेशा बचपन से ही सुनते आए हैं कि ईश्वर से भी बड़ा उनको स्थान दिया गया है, और जब गुरु के आगे 100% हम सरेंडर कर देते हैं तो वो अपने आप सारे काम हमारे होने लग जाते हैं. गुरु को पता होता है हमें क्या चाहिए है. तो मैंने लेट भी ज्वाइन किया था, जहां तक मैंने समझा तो इतना ही था कि पूरा गुरु के ऊपर ही था, गुरु और शिष्य का ही जो चल रहा था. जी. थैंक I यू. want to add on here. I just want to add something here. या. कि जैसे परमहंस योगानंदा जी ने बहुत समय लिया अपने गुरु को चुनने के लिए, एंड बहुत लोगों को उन्होंने
विजिट भी किया या इनकाउंटर भी हुए, यूनिवर्स ने उनको अलग अलग तरह के लोगों से मिलवाया और भेजा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वी चूज रॉन्ग मेंटर फॉर अस, एंड उनको इतना नॉलेज है, इतना उस लेवल पर ज्ञान नहीं होता है जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं या जो हमारी सोल की सीकिंग होती है। तो उसको भी परखने की शक्ति मैंने ये देखा कि परमहंस योगानंदा जी की सोल में वो मतलब मतलब वो, उनको पता था कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। शी ही न्यू इट ऑलरेडी कि वो इनकाउंटर अभी शुक्तेश्वर जी से वो मिले नहीं थे, बट उनको पहले ही पता था इस चीज के बारे में कि हु विल बी माई राइट मेंटर, हु विल बी राइट फॉर मी। एंड आजकल का समय तो और भी ज्यादा मतलब कलयुग का है, और मतलब हमारे साथ भी कुछ इंसिडेंसेस लाइक हमारे फैमिलीज के साथ या हमारे एंसेस्टर्स के साथ मुझे लगता है कि हुए होंगे, जहाँ वो अलग अलग तरह के मेंटर्स के साथ मिले होंगे और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। और ऐसा हुआ भी है, मैंने अपने नियर एंड डियर वंस में देखा है जिसमें लेटर ऑन मतलब ग्रेजुअली उनका कोई ग्रोथ नहीं हुआ, और लेटर ऑन दे एंडेड अप हैविंग लाइक अ वेरी, जिसको बोलेंगे कि फेथ खत्म हो जाता है, बिलीफ जो है वो बिल्कुल शैटर हो जाता है, एंड दे डोंट बिलीव इन चूजिंग देयर गुरुज, एंड दे एंड अप हैविंग लाइक नो वन इन देयर लाइव्स। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगा कि ये एक चीज है कि मतलब गुरु को परखने के लिए, हालांकि मुझे लगता है कि हम उतने सफिशिएंट नहीं होते हैं, बट स्टिल आई थिंक पता लग जाता है। तो वो थोड़ा सा जब गुरु को भी जब हम चुनते हैं या मतलब सरेंडर करते हैं, बिकॉज समटाइम जब सरेंडर कर ही देते हैं तो फिर वी आर बाउंड टू फॉलो, वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट, वी आर बाउंड टू डू द थिंग्स द वे आवर मेंटर इज सजेस्टिंग अस। बट एक आई थिंक वो कनेक्टिविटी हो जाती है, शायद पता लग जाता है, बट शायद हमारी सोल का कहीं इवॉल्वमेंट नहीं होता है, तो हम उस लेवल पे शायद जज उस समय ना कर पाते हो, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं ऐड ऑन ही करते हैं। जैसे अब मतलब परमहंस योगानंदा जी को कितने सारे गुरुज मिले हैं, और उन्होंने उन गुरुओं को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नकार दिया, बट उन्होंने कहा कि जो मुझे चाहिए वो मुझे इनसे नहीं मिल रहा है, मतलब मेरी सोल ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा जो कनेक्शन अंदर से आना चाहिए या जो एस्टेब्लिश मेरा होना चाहिए कनेक्शन, उनको लग रहा था कि नहीं, मतलब ये दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर मी। तो आई थिंक अंदर से कहीं ना कहीं experience, based upon the experiences, rather than having no mentor, we should take our own sweet time in order to like choose our right mentor for us, जिससे हम एक्चुअल में उनके सानिध्य में रह करके हम ग्रो कर सकें, वो टीचिंग्स ले सकें और अंडरस्टैंड कर सकें और अपने पाथ पर आगे बढ़ सकें। या थैंक यू। Thank you for this beautiful addition, Sunaina. Thank you. Yes. Yeah. Anyone else who would want to share before Monica ji and Sheetal comes up with their respective sharings? शशि आंटी, would आप कुछ कहना चाहेंगी, इसमें ऐड करना चाहेंगी? तुषार जी, मेरे को इस लाइन का जरा ये माया में किंग कर्तव्य मूढ़ संसार में, इसका क्या मीनिंग है? किंग आंटी कर्तव्य एक विमूढ़ मिनट, हुए आपका आवाज क्लियर इसका नहीं, और मीनिंग क्या मैं है? ओपन कर लूं जरा, एक तो आपका आवाज कट रहा है। हाँ जी, आप बताएं कौन सी लाइन? माया हाँ के जी, हाँ किन जी, ये दूसरा पैराग्राफ में कर्तव्य है ये, विमूढ़ हुए संसार में नीचे लड़खड़ाते वाली लाइन। नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का हाँ साहस अधिष्ठित हाँ होता जी। है। शीतल, would you like to go ahead? I'm not able to find it. आई कांट मैं शेयर द बताऊं? स्क्रीन बट आई नो व्हाट द लाइन इज। मोनिका जी बताएंगे, कुछ कहना चाह मैं रहे। बताती हूँ। आप एक बार हाँ जी, लाइन बोल दो एक बार दोबारा, शीतल। शीतल, माया शेयर के, कर दो स्क्रीन ना, मेरे को वो लाइन वो नहीं। लैपटॉप पे है, मैंने वहां लॉगिन नहीं अच्छा, किया हुआ। आई आई स्टिल वो ओके, लेट पैराग्राफ मी कहाँ से शुरू हो रिवर्स रहा माय कैमरा। रुको रुको बेबी, है? रुको। ओके। वन सेकंड। मैं तो दो छोटे शब्द बोलूंगी कि आपके अंदर साइलेंस आता है, तभी आप समझ भूमिका पाते जी, हो कि भूमिका जी, वेट फॉर ए मोमेंट। शशि आंटी का बीच में अभी बस एक्सप्लेनेशन चल रहा है, फिर आपको समय दिया जाएगा, आप अपनी शेयरिंग ये लो। उनका। माया के जी, माया के किन कर्तव्य विमूढ़ हुए संसार में मीन्स थैंकलेस, जो हाँ, आपके मतलब आपके जो तरफ जो ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो अपने कर्तव्य में बद्ध हैं, कर्तव्य मतलब अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी नौकरी, अपने सिस्टम में जो पूरे तरह से मतलब डूबे हुए हैं, कर्तव्यों में डूबे। ये कर्तव्य ही तो है, परिवार चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियां करनी है, पैसे जोड़ने हैं, पैसों का इंतजाम, ये कर्तव्य ही तो है हमारे, और क्या है।
माया में, उसने बोला ना, माया में, धन में डूबे हुए, संसार में लड़खड़ाते। मतलब हम नेत्रहीन क्यों कहा है? क्योंकि हम माया के जाल में इतने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं कि उन्होंने उनकी तुलना नेत्रहीन से की है, कि वो अपनी संत का आंखों से साथ। जो एक्चुअल शक्ति जिसके लिए हमने दुनिया में आए हैं, वो हमारे ईश्वर, उनको पहचानने और पाने के लिए आए। क्योंकि हमारा डॉगी भी वही सब करता है जो हम करते हैं, कोई फर्क नहीं है हम दोनों में ना, एक्चुअली में देखा जाए तो। वो भी 4 काम करते हैं, हम भी वही 4 काम करते हैं, हम सिर्फ उनसे अलग। इसीलिए उन्होंने नेत्रहीन बोला है मनुष्य को, कि अगर मनुष्य भी वही जानवरों जैसा ही कर रहा है, और वो भी अपने बच्चों के लिए करता है, अपने फैमिली के लिए करता है, परेशान रहता है, उनको खाना नहीं मिलता तो भौंकता है, सारे काम करता है, हम भी वही सब करते हैं। अपना परिवार, अपनी फैमिली, पहले मेरे बच्चों को दर्शन हो जाए कहीं जाओ तो मेरी फैमिली, चलो चलो आजो आजो आजो, हम खुद को लेते। तो उन्होंने नेत्रहीन से तुलना की कि हम नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन हैं, क्योंकि जिस वास्तविक काम के लिए हम दुनिया में आए हैं, वो काम हम नहीं कर रहे हैं, और वो है प्रभु तक जाने का काम, जिसकी सारी मशीनरी हमारे अंदर है, और जो बाहर है ये भौतिक मशीनरी है। तो हम इसका इस्तेमाल भौतिकता को पाने के लिए कर रहे हैं, जबकि इस मशीनरी का इस्तेमाल भगवान ने प्रभु को पाने के लिए किया था। और लास्ट में उन्होंने गुरु से भी रिलेटेड जोड़ा है इसको कहीं, वो भी आप एक बार दिखाओ तो। वेरी ब्यूटीफुल, समझ में आया जी, और गुरु से भी कहीं उन्होंने कनेक्ट किया। आप इसको पढ़ी दो शीतल जरा सा, एक लाइन है बस। सॉरी, मैं म्यूट पे बोल रही थी। जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया, तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्ट कमी आई। अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत थोड़े नरम हो गए थे। इन्होंने ऊपर ये क्या लिखा है कि नेत्रहीन लोगों में, ये पूरी पढ़ना लाइन। नेत्रहीन, देखो यहाँ किंग कर्तव्य विमूढ़ का जो एक्चुअली हाँ डिक्शनरी मीनिंग है ना, वो है दुविधा भरी स्थिति, यानी कि हाँ असमंजस में पड़ जाना। तो उस तरह के असमंजस जो माया के असमंजस में, उसमें ही कंफ्यूज्ड है कि मैं अब ये करूं या क्या करूं, मैं जीवन में करूं क्या। उस संसार में जब लड़खड़ाते हुए नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है, कि उसको संत तरस वही आता है। है। हाँ, हाँ, गुरु आप को ना, संत को तरस आता है उनके ऊपर ना, लोगों को नेत्र होते हुए भी माया के चक्कर में नेत्रहीन व्यवहार देखते हुए गुरु को तरस आता है, और वो मतलब उनके का में ही संत का साहस, मतलब संत को बहुत साहस करना पड़ता है कि वो ऐसे लोगों पे काम कर रहा है जो माया में तृप्त हैं, डूबे हुए हैं और नेत्रहीन जैसा बिहेव कर रहे हैं। फिर भी संत कहता है कि इन लोगों को मैं रास्ते पर लेकर आऊंगा। तो वो संत के साहस की बात कर, उसकी हिम्मत की बात कर रहा है। और बड़ी अच्छी आपने अगली लाइन भी पढ़ी है कि जब मैंने आंतरिक रोष, जैसे ही मैंने अंदर की जो मेरा गुस्सा था, नाराजगी थी, रोष था कि मुझे गुरु क्यों डिसिप्लिन के लिए बार बार बोलते हैं, जैसे ही मैंने उसको कम किया, जैसे ही मैंने अपने अंदर की लड़ाई को कम किया, अंदर के अवसाद को कम किया, पीड़ा को कम किया, वैसे ही मैंने देखा कि गुरु के मुझसे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आने लगा। उस चेंज को मैंने महसूस किया, और ये बहुत बड़ा सच है, ये बहुत बड़ा सच है। हमने सुनैना मैम से ही सीखा है ये सारी चीजों की, मतलब कला उन्हीं से सीखी है, मेरे को तो उन्होंने ही सिखाई है। ये बहुत बड़ा सच है कि जब हम अपने अंदर के रोष को, मतलब अपने अंदर एक ठहराव देते हैं ना, प्रतिक्रियाएं कम कर देते हैं, जजमेंट्स कम कर देते हैं, लोगों को आंकना, बांचना, जांचना कम कर देते हैं, बस सिर्फ देखते हैं, कुछ भी हो रहा है बस देखो। आज हम लोग बालकनी में खड़े थे तो एकदम मेरे हस्बैंड बोले, ये सामने वालों ने देखा मकान का इनका सारा प्लस्तर उतर रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। मैंने उन्हें बोला, आपने प्लस्तर कराना है? कहते नहीं, नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं, कुछ नहीं बोलना, किसी को देख देख के कुछ नहीं बोलना। भीतर को जितना ठहराते जाएंगे, जितना रुकते जाएंगे, जितना शांत होते जाएंगे, हजारों सवाल आते हैं दुनिया को देखकर, कुछ नहीं बोलना। करना है तो बस अपने पे काम करना ही है ना, ज्यादा शौक आ रहा है करने का, अपने पे करो, अपने घर के प्लस्तर को ठीक कराओ। ठीक है, पहले हमारे घर का तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया, किसी के लिए नहीं बोलना कुछ। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी हजारों चीजें।
तो वो भी जब रोष उनका अंदर का कम हुआ ना, उन्होंने देखा गुरु में क्योंकि जैसे हमारी एनर्जी शांत हुई, जिसमें खलबली मची रहती है, जैसे वो शांत हुई, सामने से प्रतिक्रिया अपने आप बदलनी शुरू हो। एंड दैट आई वांट टू से। जी थैंक यू मोनिका जी। यही जजमेंट बनाते रहते हैं, दूसरों के लिए तर्क वितर्क करते रहते हैं, अपनी तरफ कभी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ध्यान नहीं शांत देते। हो हाँ, जाओ, कुछ नहीं कुछ करना, नहीं। दृष्टा और भाव से देखना है। और हाँ जब जी, आप, हाँ, नो आप जजमेंट। तो बहुत हाँ आगे हो इस जर्नी में अब, शशि जी, आप तो बहुत आगे जा चुके हो इस जर्नी में। ये दृष्टा भाव को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत बिल्कुल। हाँ, बढ़िया। जी बस दृष्टा भाव से देखो All right, thank you. और Thank एक्सेप्टेंस में आ जाए, you. एक्सेप्टेंस में आ यस, जाए। यस। Anyone else who would want to share the reflections, and then we have to take थैंक यू। one query. थैंक One question needs to be addressed. Sonal Alkaji is done. Sunaina, Yogini ji, would you like to share? Dr. Gurpreet, just come up with 1 to 2 lines. I mean, in brief, because it's already 8:05, and then we have one query to be addressed. मैं जो बात कहने जा रही थी वो मोनिका जी ने कह दी। जी भूमिका जी। अगर आप शांत नहीं होते तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। आपको पहले सॉरी खुद को ग्रो करना पड़ता है, खुद को पकड़ना पड़ता है, तब आप बाहर देख पाते हैं। Right. आप अंदर जाते नहीं हैं, बाहर आ जाते हैं तो बाहर ही रह जाते हैं। फिर आपको अंदर ही जाना पड़ता है, Right. और अंदर जाएंगे आप, तब आप अपने को तब आप अपने को नहीं, आप सामने वाले को भी समझ पाएंगे कि आपको वो क्या कहना चाह रहा है। पर आप भौतिक दुनिया में हैं, और ये भौतिक दुनिया को छोड़ना ही थोड़ा मुश्किल है हर इंसान के लिए। So in Thank you. brief, yeah, thank you भूमिका जी। In brief आप ये कह रहे हैं कि outer world is a reflection of your inner world, and that's so true. कि बाहर जो हो रहा है वो हमारे inner world का ही एक पिक्चर है, that's a mirror image of what is going inside, क्योंकि हम वही बाहर देख रहे होते हैं। तो बाहर जो भी दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर खराब है, इसका मतलब है कि अंदर, हमारे अंदर में भसड़ मची हुई है। We need to address that first, to be able to address what's going outside, or what we are seeing in our world, or map of the world in another language. All right, thank you. Thank you, Bhumika ji. Sunaina, would you like to address the query? Minakshi posed a question, जिसमें कि हमने बात कही थी कि जो क्रिटिसिज्म है, बहुत लोग जो हैं, जो क्लोज्ड वंस होते हैं, वो हमारे क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं. How to deal with such people? Those who are especially close to us, they don't take the criticism positively or constructively. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक। और ये चैलेंज मुझे भी आया अपने रिलेशनशिप्स में, और मैंने ग्रेजुअली लेटर ऑन इस चीज़ को रियलाइज किया कि जब मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन लिया, सपोज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव फीडबैक टू समवन, सम टाइम हमें लगता है कि जैसी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप्ड है, वन थिंग इज दिस, कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे ना किसी भी पर्सन या सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आपको खुद ही रिफ्लेक्शंस मिलते हैं जब आप किसी नॉलेज के बेसिस पे उसको एनालाइज करते हैं। जब हम ऐसे ही जस्ट लाइक दैट ही मतलब घुस जाते हैं किसी की लाइफ में, और एक लेक्चर की तरह और एक टीचर की तरह उसको समझाने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कई बार वो तरीका शायद हमारा उतना रिफाइंड नहीं होता है। ये मैंने अपने साथ रियलाइज किया कि सम टाइम गिविंग लेक्चर्स स्ट्रेट अवे जस्ट लाइक दिस डजंट हेल्प एट ऑल। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण ये हैं कि सम टाइम उस पर्सन की को हम जज करके मतलब जजमेंटल हो रहे होते हैं, और अपने माइंड में जजमेंटल होते हुए उसको, या क्रिटिकली एनालाइज करके कि सामने वाले को हम मतलब क्या टोन का इस्तेमाल करते हैं, क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली भी हमारी क्लैरिटी कितनी है खुद खुद के अंदर, और जब हम बोल रहे हैं हम किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो हाव भाव है चेहरे पर हम किस तरह से देने की कोशिश करते हैं। मतलब वो हाव भाव मतलब छोटी छोटी बातें हैं, बट ये बिलीव यू मी, आई थिंक तो शारोन हमने कुछ सेशन अटेंड किए साथ में, और हमने यही सीखा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज ऐसी की जहाँ पर मैम ने हमें बोला, रेनू मैम ने बोला हमें कि आप जब सामने वाले को बता रहे हो तो एक्चुअल में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपने देखा, नोटिस किया, आपकी आंखों की मूवमेंट्स कैसी है, आप जब सामने वाले के लिए आपके मन में फीलिंग कैसी है। इट इज़ नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट इज़ ऑलवेज अबाउट यू ओनली,
कि हमें वो तरीका कई बार नहीं आ रहा होता है, और हमारा इंटेंशन क्या होता है। अगर इंटेंशन ही हमारा क्रिटिसाइज करने का है और नॉन एक्सेप्टेंस और जजमेंटल होकर के जब हम किसी को फीडबैक देते हैं, ये मुझे मेरे लिए फीडबैक मिला, रिसीव हुआ मुझे, जब मैं किसी को फीडबैक दे रही थी और सामने वाला रिसेप्टिव नहीं था, तो उन दिनों हम 4 अग्रीमेंट्स वाली बुक पढ़ रहे थे, तो मुझे इमीडिएटली सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ उन 4 अग्रीमेंट्स में से एक लाइन जो थी कि हैव यू एक्चुअली डन योर बेस्ट इन ऑर्डर टू कन्वे द थिंग्स। अब ये एक लाइन है, अब एक लाइन में मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं कि एक्चुअल में जितना मुझे पता था उसके अकॉर्डिंगली मैंने किया, मतलब कन्वे चीजें, या मैंने एक्चुअल में अपना इंटेंशन चेक किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक की, अपनी टोन चेक की, मेरा जो वे था वो मतलब क्रिटिक वाला तो नहीं था, कि क्या सामने वाला पर्सन क्रिटिक को इजीली ले सकता है कि नहीं ले सकता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये सारी चीजें ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि इंटेंट क्या है आपका, ये इंटेंट और किस तरीके से आप कन्वे करते हैं, इन दोनों चीजों का मिश्रण जो है, इन दोनों का मिक्सचर जो है, वो आपकी बात को कितनी इफेक्टिवली आपने कन्वे करना है। बिकॉज मैंने नोटिस किया कि मैं कई बार ना मतलब टीचर की तरह बन जाती हूँ यार, ऐसे मतलब ऐसे होता है कि भाई सीख ही जाओ तुम, तो इसमें तुम्हें सुधार के ही रहूंगी, तो मुझे लगता है कई बार वो अप्रोच काम नहीं करती है, बिकॉज सामने वाले का जो सजेशन लेने का तरीका है वो बहुत अलग हो सकता है। और जब आप सामने वाले के लिए इंटेंट क्लियर रखते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स का और टोन का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, और सामने वाले को रिस्पेक्टफुल जेस्चर के साथ उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसके फायदे बताने की कोशिश करते हैं, कि उस बात को, जो फीडबैक आप दे रहे हैं, उस फीडबैक को लेने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जब वो क्लैरिटी के साथ आप वो सारा कॉन्वर्सेशन अपने माइंड में पहले टेक प्लेस करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका एंड जो रिजल्ट है, जब आपने ये चीज़ों का ध्यान दिया कि हाँ मेरे पास उस चीज़ को समझाने के लिए प्रॉपर टोन है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज है, प्रॉपर नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन का आपने इस्तेमाल किया, और आपका जो इंटेंट है उस पर्सन को हर्ट करने का नहीं है, जस्ट उसको समझाने का है और फैसिलिटेट करने का है, और ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जो है, मुझे लगता है कि एक विन विन सिचुएशन और क्लोज एंडेड डिस्कशन को करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम ओपन एंडेड डिस्कशन करके छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा किया और आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ही चेक नहीं किया कि वो लड़ाई झगड़े में जब हम वो चीज कन्वर्ट हुई है, तो जो मैंने सीखा और समझने की कोशिश की कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक कॉन्वर्सेशन को समझाना चाह रहे हैं, फीडबैक देना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे रिफाइन वे में मतलब प्लेस करके और मतलब अपने माइंड में कंटेक्चुअलाइज करके उसको रिप्रेजेंट करने से मुझे ऐसा लगता है कि वो बात इफेक्टिवली कन्वे हो पाती है। और इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले की रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए और डिग्निटी को मेंटेन करते हुए जब बात कन्वे की जाती है, तो वो बेटर कन्वे होती है। और अगर एक वे जो हमने पढ़ा अभी मतलब इन दीज सेशंस एज वेल एंड इन एनएलपी एज वेल, आई थिंक शीतल ने अभी मास्टर प्रैक्टिशनर का पूरा कोर्स किया हुआ है, तो शी कैन ऑल्सो गिव सम रिफ्लेक्शन ऑन द सेम दैट मतलब एक काम को करने के 1000 तरीके होते हैं, अगर रिजल्ट वैसा ही आ रहा है तो इसका मतलब आप उसी तरीके से ही मतलब बात को कन्वे कर रहे हैं। तो योर कम्युनिकेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द आउटकम वट एवर यू एक्सपेक्टेड। इसका मतलब अगर वो आउटकम नहीं आया है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब आपने अच्छे से उसको फ्रेम नहीं किया, अच्छे से क्लैरिटी से उसको प्लेस नहीं किया, अच्छे से उसको मतलब इंटेंशन क्लियर नहीं रखा अपना। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, बट बिलीव यू मी दीज थिंग्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आई टुक अ फीडबैक ऑफ मी ऑन माई ओन। मुझे किसी ने दिया नहीं वो फीडबैक, बट जब वो आउटकम वैसा नहीं आया, तो मैंने नोटिस किया कि यस, सामने वाले को शायद ये चला गया कि मैंने उसको रिस्पेक्टफुल जेस्चर के साथ नहीं समझाया, या मेरी टोन ऐसी नहीं थी, या मेरी कहीं ना कहीं मेरी खुद की इंटेंशन में ऐसा था कि आई वॉज रियली डिस्टर्ब्ड एंड हर्ट, एंड वाइल बीइंग हर्ट आई थिंक वी शुड अवॉइड डिस्कसिंग। तो ये एक आई थिंक ये एक बहुत ही जेनरिक टर्म है जो हमने यूज करी है, बट आई थिंक मीनाक्षी जी अगर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या इवेंट को कभी नेक्स्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस करें, तो वो बताया जा सकता है कि मतलब क्या आउटकम वो चाह रही हैं, और उसको कैसे डिजाइन किया जा सकता है, और कैसे उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है अपने लिए और सामने वाले पर्सन के लिए, while creating a win-win situation and while creating a very clear intention and a very मतलब हाँ रिस्पेक्टफुल, आई थिंक रिस्पेक्टफुल एक बहुत ही बड़ा एक जेस्चर होता है जब सामने वाले को आप हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बट रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी को ना कि केवल महसूस करना,
उसको वो दिखा भी पाना। मतलब कई बार हम मन में महसूस कर रहे होते हैं लेकिन हमारे वर्ड्स, हम कन्विंस नहीं होते उस चीज के लिए खुद भी। तो हम हाफ कन्विंस होते हैं, हाफ कन्विंस नहीं होते हैं समटाइम्स। एंड वो जब अब्रप्टली ऐसे बात करनी हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हिट हो जाती है सामने वाले को। तो आई थिंक इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड देन उसके अलावा आपकी टोन कैसी है, आप शब्दों का क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका इंटेंट कितना क्लियर है, ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर मिश्रण जब आप बनाने की कोशिश करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक मेकिंग अ रेसिपी और कुकिंग समथिंग। व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग वेरी गुड। वेरी गुड का डेफिनेशन होना चाहिए कि यार ये टेस्ट मैंने करा हुआ है, या मैंने किसी को ऐसा कॉन्वर्सेशन करते हुए देखा, तो मुझे ऐसा ही कॉन्वर्सेशन करना सीखना है। तो तब आप वो इंग्रेडिएंट्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक तरह से जो आप इकट्ठे करते हैं वाइल कॉन्वर्सेटिंग विद समवन। जैसे हम एक, जैसे पनीर पसंदा खाना है या हमने कोई मखाने की सब्जी खानी है, वट एवर वी वांट टू मेक, इट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड फर्स्ट। वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ हम इस टेस्ट की ये सब्जी बनाना चाहते हैं, तीखी बनाना चाहते हैं, मीडियम स्पाइसी बनाना चाहते हैं, फीकी बनाना चाहते हैं, उसको पसंद कैसा आएगा, उसको कैसे समझ में आएगी, उसकी पसंद क्या है। कई बार हम अपनी तरफ से अच्छा बनाते हैं लेकिन उसकी पसंद के बारे में नहीं जानते हैं कि सामने वाले की पसंद क्या है। ये वो अलग अलग हो सकते हैं। आई थिंक शीतल wants to add on something Yeah, to this thing. yeah, Sheetal, I just Yeah. need to add up, take one second, because ये सुनैना से continuation में ही है. Just for Meenakshi, I think I was also मतलब feedback के केस में मेरे दिमाग में जो बातें हुए while सुनैना was explaining, तो मेरे दिमाग में 2-3 चीजें आ रही थी कि एक तो अगर आप फीडबैक किसी से दे रहे हो और वो नहीं कन्वे हो रहा है, so that means you're not able to build a rapport with that person. और ये सुनैना, I think I've today only I was just revising the presuppositions of NLP in the morning, और मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक कर रही थी, तो मेरे को ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी लगी कि जब आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपने उस पर्सन के साथ एक रैपो बिल्टअप नहीं किया है. वन. सेकेंड इज, Meenakshi, you should not never take the responsibility of other people's world. Your responsibility is to create your world. तो जब आप दूसरे को कन्वे करा रहे हो, तो आप इस थॉट से या इंटेंट से कि मैं उसकी वर्ल्ड चेंज करने जा रही हूँ, आप वो नहीं कर सकते. यू कैन डू दैट एंड डोंट इवन इंटेंड टू डू दैट. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैप ऑफ द वर्ल्ड. दैट विल हेल्प यू. देन आई हैव रिटन 4 प्री सपोजिशन. सुबह में पढ़ रही थी, एक रिविजन कर रही थी, उसमें मुझे आपके लिए, क्योंकि आपका टॉपिक फीडबैक पे था, तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी. फर्स्ट, विच आई हैव जस्ट स्टेटेड, वी डू नॉट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज इट इज, वी एक्सपीरियंस अ मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. तो हम जो चीजें देख रहे हैं जरूरी नहीं वो वैसे ही हो, वो हम देख रहे हैं, वो अगला अपने मैप ऑफ द वर्ल्ड को डिफरेंटली देख रहा है. सेकंड वाज जो सुनैना ने बोला था कि रिस्पेक्ट, जब भी आप कन्वे कर रहे हो तो जरूर एक डिग्निटी, रिस्पेक्ट जरूर मेंटेन करें अगले की, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए. थर्ड, सुनैना ने कन्वे कर ही दिया था कि आपका कम्युनिकेशन का टोन बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए, कि टोन जो है वो उस इंटेंट से होना चाहिए कि आप उसको कन्वे करना चाह रहे हो, क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहे हो. देन कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट. And if you do not get the result you want, then change what you do. If you get the same result, you got to change the procedure or the tools that you have been using. Either it's a tone, या आपने रेपो बिल्टअप नहीं किया है, या आप कन्वे नहीं कर पाए हो, या आपने फ्रेम ही नहीं किया, डिजाइन ही नहीं बनाया कि कन्वे क्या करना है. जैसे सुनैना ने कहा कि रेसिपी नहीं पता आपको, तो जो रेसिपी दिमाग में नहीं, आप कन्वे भी नहीं हो पाएगी. देन रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है. रेजिस्टेंस इज अ साइन ऑफ, अगर अगला पर्सन, क्योंकि लेटली मैं और सुनैना डिस्कस कर रहे थे, सेम इशू फीडबैक वाला ही था, तो रेजिस्टेंस आ रही है अगर अगले पर्सन की तरफ से, उसका मतलब ही ये है कि आप दोनों की जो रेपो है दैट्स इनएडिक्वेट. सो रेजिस्टेंस इन अ साइन ऑफ inadequate repo. That means you need to build up a repo with the other person if you really want those results that you want to have from the other person. But don't think that you will change the shape and design and reality of other person's life. Don't do that. Don't create that. You are responsible for your own world. And last is, any situation has several options. If something doesn't work, then do something else. If it's not working for you, क्लियर है भाई कि चेंज करना है, चेंज करो. व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू गेट द रिजल्ट, इसका मतलब सेम पैटर्न से चीजें नहीं आ रही हैं, चेंज करो अपना पैटर्न. आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प. शीतल, ओवर टू यू. शीतल would be able to beautifully explain, I'm sure, and would be able to address that. Thank you. I had certain points on the reflections from the passage today. Which one shall I take first? Short में. I know First, I time think ज़्यादा हो गया. you should be addressing Meenakshi's, because that's This question, okay. yeah.
ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट, अगर कोई फीडबैक ढंग से ले नहीं रहा है या उसे पहुंच नहीं रहा है, वट एवर द केस में बी, तो क्या करना चाहिए? मतलब अच्छा फीडबैक देना है, कैसे दें? दोनों ने थ्योरेटिकली बहुत डिटेल में कवर किया है, तो मैं प्रैक्टिकल टिप दे के छोड़ती हूँ शॉर्ट में। पहला, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे तुम मुझे सुन रहे हो कि नहीं, वो कहेंगे नहीं सुनते, जा रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे सुनो? या फिर अगर मूड अच्छा है, शांत टोन में बात हो रही है, आप रिस्पेक्टफुली उस आर्ग्यूमेंट को ले रहे हो या फीडबैक को दे रहे हो, तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट आर योर सजेशंस? क्या इसको और तरीके से नहीं करा जा सकता था? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट आर योर सजेशंस? व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? तो व्हाट क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं। दूसरा, आई स्टेटमेंट्स यूज करोगे तो एक्विजिशन और ब्लेम नहीं लगेगा। You did this, you said this to me, why did you not listen? Instead of saying you, start using I and say, I felt you said this, I felt you did not understand, I felt कि तुम्हें अभी और जरूरत है ये बात इस ढंग से करने की। तो आप बिना कोई सिचुएशन यहाँ बताए भी अगर आप ये चीजें अप्लाई करोगे, आपको बात के कॉन्वर्सेशन में वो सारे थ्योरी ऐड करना इजी हो जाएगा जो इन दोनों ने कवर की। उसमें पोलाइटनेस भी दिखेगी, उसमें थोड़ी सी टोनालिटी भी सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने ना अपने आप पे ये उंगली कर ली, उधर नहीं की। तो वरना जब उधर होती है तब भी तीन उंगलियां हमारी तरफ होती है, हमें ध्यान नहीं होता। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना, आई फेल्ट कि तुम्हें ये मेरी बात समझ में नहीं आई, तो उसे लगेगा अच्छा तुम्हें लगा ना, मुझे तो समझ में आई थी। तो उसका डिफेंसिव होना इजी हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी अ स्कोप ऑफ कॉन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो एक तो ये, and you can always find out a better time in the that moment जब चीज बहुत फ्लेयर्ड अप है, उस समय फीडबैक ना देके, लेकिन बहुत डिले में भी नहीं देना, क्योंकि फिर वो कहेंगे गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, पुरानी बातें उठा रहे हो। तो आपको फीडबैक जब भी देना है, सही वक्त का इंतजार करना है, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए टॉपिक। फ्रेश टॉपिक पे फीडबैक दो भी, सुनो भी, उनका ओपिनियन भी लो और क्लोज कर दो। देन पुट इट अ क्लोजर, मतलब कहते हैं ना पुराने जमाने में बोलते थे कि बातों को मिट्टी डालो, तो वो एक्चुअली आपको दिमाग से निकाल के एज इफ आप मेंटल स्क्रीन पे उसे जमीन के नीचे गाड़ रहे हो। अगर आप ये भी करते हो ना, ये एनएलपी का ही एक तरीका है। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ हाउ टू हैंडल फीडबैक, गिविंग फीडबैक। सो बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर थिंग, लेट्स गो बैक टू मीनाक्षी जी। डज दिस हेल्प? Yeah, I just read her answers. Like, yeah, it helped a great deal to her. And ओके, she's so grateful for all the answers and concerns that we have shared and how we addressed it. Thank you, Sheetal, या and thank you, Sunaina. Yes, Sheetal, please go ahead. या फॉर द रीडिंग टुडे, आई थिंक मेरे रिफ्लेक्शंस बहुत डिफरेंट है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सुरैना से थोड़ा सा डिफर कर रही हूँ दो तीन जगहों पे। तो मैं बोलना चाहूंगी, मे बी इसमें हम सबको एक नया पर्सपेक्टिव मिले। जब हम ये बात पढ़ रहे थे कि वो बोलते हैं कि अच्छा आप तो भगवान को भी नहीं समझते, मैं सामने खुला हुआ है पेज, नीदर डू यू अंडरस्टैंड गॉड, इफ अ सेंट वर क्लियर टू यू, यू वुड बी वन। मतलब अगर आप एक संत को समझ सकते हो तो आप ही संत जैसे होगे, और क्योंकि वो संत को नहीं समझा इसलिए वो भगवान को क्या समझेगा। यानी कि मेरी रिफ्लेक्शन ये है कि मुझे अगर भगवान को समझना है तो पहले मैं किसी संत को ही क्यों ना समझ लूं, बिकॉज गुरु ही भगवान के बराबर है। और कहते हैं ना कि गुरु ही भगवान के रास्ता दिखाते हैं। तो मेरे लिए भगवान को समझने से पहले इजी हो जाएगा अगर मैं अपने गुरु को समझूं। पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि श्री युक्तेश्वर जी की जो आंखें चुंधिया देने वाली जो शिक्षा या उनका विजडम था, शायद इन बच्चों को लेने के लिए वो रेडी ही नहीं थे। वो उस स्पिरिचुअल सिकनेस में थे, उनको स्पिरिचुअलिटी तो चाहिए लेकिन वो रोगी हैं किसी ना किसी भाव में, तो वो उस चकाचौंध को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस तरह से मैं जहां पे डिफर कर रही हूँ वो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। सुनैना ने बात तो बहुत अच्छी बोली, जब तक आपको अपना मनचाहा गुरु ना मिल जाए पेशेंस रखो। पेशेंस बहुत अच्छी बात है, पर मेरी जर्नी कुछ और रही है। मेरी जर्नी ऐसी रही है, बचपन में मैंने एक कोट पढ़ा था कि जैसे एक हनी भी होती है ना, अलग अलग फूलों से नेक्टर लेती है, लाइक अ बी टेक्स हनी फ्रॉम मेनी फ्लावर्स, यू शुड ऑल्सो हैव मेनी टीचर्स इन योर लाइफ। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने अलग अलग मेंटर्स पकड़े हैं एक्चुअली। हो सकता है जिनको मैं, अब मैं ये नहीं कह रही कि हम जज कर रहे हैं कि क्या ये मेंटर मेरे लिए वही है कि नहीं, जो मुझे चाहिए वो दे सकता है कि नहीं, पर ये जो दे सकता है मैं वो तो लूं।
मैं वहां पे मेरा थॉट चला गया। आई डू नॉट डिसअग्री विद व्हाट शी इज सेइंग, बट मेरा थॉट थोड़ा सा डिविएट हो रहा है कि जो भी गुरु मुझे मिल रहा है, उन्होंने लेविटेटिंग गुरु से भी कुछ सीखा, उन्होंने हर गुरु से कुछ कुछ सीखा और आगे बढ़े। तो पेशेंस क्या रखनी, हर गुरु से सीखो, जो गुरु आपको जो सिखा रहा है वो लो और आगे बढ़ते रहो, जब तक आपकी खुशी में आपकी तसल्ली वाले गुरु आपको नहीं मिलते जहां आपको वो कनेक्ट आ रहा है। और तीसरी चीज उन्होंने इसमें बहुत अच्छी बात अगले ही पैराग्राफ में बोली कि जिन बच्चों ने लाइक माई सेल्फ, यानी कि मेरी तरह जिन लोगों ने उनसे कह दिया था कि प्लीज डिसिप्लिन मी, वहां युक्तेश्वर जी अपना डंडे का भी जोर चला रहे थे डिसिप्लिन का। जिन लोगों ने नहीं इस तरह की इच्छा जाहिर की, यानी कि ये सरेंडर आ रहा है कि जब हम सरेंडर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्लीज डिसिप्लिन मी, तो अब आपका डंडा भी मंजूर है, आपके प्यारे शब्द भी मंजूर है, तो आपकी मार भी मंजूर है। तो ये सीखने वाली बात है कि हम अगर अपनी पेरेंटिंग में भी ये चीज अप्लाई करें, तो अगर बच्चा इस बात की सरेंडर कर रहा है कि ये टीचर मुझे जैसे भी पढ़ाएंगी मुझे अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, तो मुझे इस टीचर से अच्छा पढ़ना है किसी भी कीमत पे, वही मुझे इस पेरेंट की डांट भी मंजूर है और प्यार भी मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे वहां लव ही दिख रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लव आ जाता है निचोड़ में। सो दीज आर माई लर्निंग्स कि क्या मैंने सरेंडर किया, क्या मैंने अपने गुरु को बोला कि आप मुझे हर हाल में डिसिप्लिन करो, अगर किया तो फिर मुझे उनका कहना मानना है, हर हाल में मानना है। सो अगर हमारे पास मेंटोर्स हैं तो हमें उनके क्रिटिसिज्म को सर आंखों पे रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें उस जैसे यहाँ बताया ना, एक रॉ फॉर्म से एक अच्छे तराशे हुए ज्वेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यू आर एन ओर कहते हैं ना, जमीन से रॉ निकला हुआ और फिर आप तराशे जा रहे हो। सो मुझे लगता है कि अगर हमने अपने मेंटर को सरेंडर किया है तो फिर सब आने दो, और अगर हमें मेंटर ही नहीं मिला है तो जो छोटे छोटे आपको टीचर्स भी मिल रहे हैं, अगर आप उनको मेंटर नहीं कहना चाहते, आप उन्हें टीचर मान के वो फॉर द टाइमिंग तो ऑब्जॉर्व करते करते, क्योंकि आपको चूज करना भी इजी हो जाएगा ना, आप फिल्टर करते रहोगे, इससे ये मिला यानी कि मुझे किसी और से कुछ और भी चाहिए, तो वो दर्जा बढ़ता रहता है, आपकी उम्मीद आपकी भूख बढ़ जाती है, तो फिर आपको एक दिन आपका मेंटर मिलता ही है। सो it's not a disagreement, but it's a direction towards Is another this thought. your map of the world is different from Sunaina's map of the A world? little bit, yeah, here, yes, a little bit. That's it. I mean, yeah, she has seen the things through her filters, and you have seen it through your filter, and both are correct. Both are correct. Absolutely, Yeah, yeah. good. Thank you. Thank एक you ना for मैंने मोटिवेशन स्पीकर है उनका ना, मैंने सेशन अटेंड किया, वो हर चीज के पीछे बोलते हैं राइट और राइट, वो राइट और रॉन्ग बोलते ही नहीं थे। हाँ, बहुत लोग हैं। वैसे वो बोलते राइट और राइट, मैं सही हूँ ना, राइट और राइट। नो का So that ऑप्शन ही was a नहीं देते beautiful हो। way to explain, Sheetal. Thank you so much for yeah, explaining more beautiful on that. explanation. And मैं अभी मेरे माइंड में कुछ एक दो चीजें और आ रही थी, वो एकदम से फिसल गई हैं। You can put it in the chat, put it in the Yeah, sure, I will Sunaina, do for that. everyone to read. I think if there are more reflections, you can just हाँ, put it down. मैं फटाफट से बताती हूँ, क्विकली याद आ हाँ रहा हाँ, है। please. मैं ये बताई थी कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अभी शीतल ने बताया कि मतलब मेंटर को हमने बोला, मतलब ट्रस्ट किया, सरेंडर किया, तो डिसिप्लिन करने के लिए आई थिंक जो पीपल इन आवर सराउंडिंग, बट अगर आप उनको उस नजरिए से देखेंगे तो वो बहुत तरीके से हमें, जब वो परफेक्टली बता रहे होते हैं कि सपोज हमने एक चीज को मतलब एक तरीके से कन्वे करी है, उनको समझ नहीं आई है, मतलब उनको, हमें लग रहा है कि यार उनको समझ नहीं आई है, फिर वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अनदर वे टू कन्वे द थिंग्स। तो उनके ना समझ आने के लिए भी मतलब कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एक एजुकेशन सिस्टम में डाला बाय डिफॉल्ट, तो दे आर ऑल्सो अ टीचर बाय डिफॉल्ट, लेट मी टेल यू दैट। Every तो critique, किसी को वो एवरीवन इज अ टीचर, every critique, every I'll give a very एवरी quick example. Sorry, मुझे पता है टाइम ज्यादा हो रहा है। जब मैं कहती हूँ ना सुनैना से मैं सीख रही हूँ, और मैंने सुनैना की तरफ सरेंडर किया है, अभी हाल फिलहाल शी विजिटेड मी एंड माय ऑफिस, इसने कोई सामान छेड़ा और इसने वो छेड़ कर उथल पुथल मचा दी। हैड इट बीन समबडी एल्स मुझे बुरा लगता, मगर क्योंकि ये कर मतलब रही थी मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे लगा इसके पीछे कोई वजह है, इसके पीछे कोई लर्निंग है, इसके पीछे कोई टीचिंग है, and that gave me such a new perspective just because my surrender towards her was pure कि यार ये कर रही है तो भगवान कुछ तो करवा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे को कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स की एनर्जी से फील कराती है कनेक्टेड। intent, सो उसका दैट इज intent व्हाट pure यू है. बिकम माय टीचर सुनैना, दैट्स वेयर यू बिकम माय टीचर wonderful. and Renu ma'am So becomes my mentor. so Beautiful. good. Thank you so much, Sheetal, for giving me that love and affection मोनिका जी and कुछ regard. कहना चाह रहे हैं, आई थिंक. या वो तो मेरे को प्यार जी भेजेंगे, मुझे जी, पता है। मैं वो पिछले 4 सेशन से मुझे मैं बहुत सारा ये प्यार कहना चाहती भेजेंगे, हूँ मैं ले लेती हूँ। कि जिनको हम मानते हैं ना, उनकी हम सब बातें मानते हैं।
जिनको हम हाँ। मानते नहीं है ना, उनकी बात हमें चुभती है, सीधी सी बात है। सुनैना मैम को हम मानते हैं तो इनकी सब मानते हैं। ये कुछ भी कहती हैं तो हम उसमें ना मीनिंग ढूंढने लगते हैं, मीनिंग, कि इसमें भी पता है कुछ क्या हो जाता है मीनिंग मुझे ना, मतलब मुझे ऐसा लगने लगता है कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर व्हेन है। यू गिव यस सो मच यस ऑफ मतलब लव एंड अफेक्शन टू मी यस। एंड यू पॉन्डर सो मच ऑफ मतलब रिस्पेक्ट। मतलब ऐसा लगता है कि एनएलपी आई करो, एम एनएलपी सराउंडेड उस बाय सो मच ऑफ शोल्डर लव। से उठाओ और नीचे रख दो उसको, इनको और रात को फैमिली सोने दे। कॉन्स्टलेशन में भी यही आया है कि मत करो ये सब, दुनिया का भार नहीं उठाना। वो तो मुझे अपडेट मिलती है। लेट्स रैप अप, इट्स 8:30, सॉरी। या All right, guys. Thank you, Monica ji. Thank you, Sunaina. Thank you, Sheetal. Thank you, Meenakshi, for putting up a question. Thank you, everyone, for your एक beautiful sharings. एक छोटी सी लाइन में ऐड करना चाहूंगी। जी जी। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। पता नहीं, मीनाक्षी जी का सवाल एक्चुअली मैंने सुना नहीं, इतना सब कुछ हुआ। मैं 1 सेकंड के लिए बाहर गई थी, वो डॉगी बहुत ही डिस्टर्ब सा हो रहा था, इतने में आपने सवाल पूछ लिया, तो वो मैं क्वेश्चन रह गया मेरा। उसके बाद मैंने बहुत कुछ सुना उसके बारे में, तो उससे मैं जो एक चीज निकाल पाई, शायद रिलेशन के ऊपर कोई बात थी, शायद रिलेशन के ऊपर कोई सवाल था, ऐसा मैं गेस कर रही हूँ। बट मैं यहाँ फीडबैक पे एक देने पे चीज, था। हाँ हाँ, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जनरली क्या होता था कि उन्होंने कुछ कहा तो मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और अब मैंने कहना शुरू किया, ऐसे कर ले?" मैंने कहा हाँ श्योर, हाँ श्योर, ये ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ चले, डेफिनेटली। तो सिर्फ इतनी सी अपनी अहंकार की गांठ निकालने से, कि पहले जो ऑप्शन दी नहीं वो नहीं माननी, अपनी धरनी है बीच में एक ऑप्शन, अपनी जरूर देनी है, ये बताना कि भाई मैं भी सियाना हूं, मैं कमला थोड़ा ना हूं। पर जैसे ही मैंने वो कमलापन वाक्य में अचीव कर लिया कि हाँ यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 50% चेंज आ गया बंदे में, 50%। That's right. Beautiful. बिना कुछ करे 50% चेंज था। कि वो हमने पुरानी बात सुनी, मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, मैं कहूँ दिन तो तुम कहो दिन, और मैं कहूँ रात तो तुम कहो रात। ये फार्मूला काम कर गया और बड़ा धुरंधर काम किया। हम जो कहते हैं ना, टेबल यहाँ मत रखो, यहाँ रख लो, इसी में कहानी खराब हो जाती है। भैया तुम्हें जहां अच्छा लगता है वहीं रख लो, बहुत बढ़िया। सजेशन देने की परम बजाय शांति। मांग लो, व्हाट डू यू सजेस्ट, ये पूछ लो तो ज्यादा इजी हो जाता है फीडबैक देना। यस यस यस। तुमको क्या लगता है, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो? उससे अगले का अहंकार भी पूरा हो गया, भाई मेरे से पूछ लिया, फिर जहां मर्जी रखो, करवा तुम तब भी अपनी लेते हो, ये सवाल पूछ के कि तुम बताओ कहाँ अच्छा लग रहा है। फिर अगला भी कहता है अच्छा तुझे क्या लग रहा है, कहाँ रखना चाहिए। बस हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं बट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। Thank you, Monica I ji. think communication is the base of everything. I मैं think ऐसे करती हूँ, मैं निकलती हूँ, आप लोग कंटिन्यू करो। मैं भी जा रही हूँ, मेरे को कहीं जाना है। अच्छा, हो ही नहीं रहा भाई। थैंक यू, मीनाक्षी जी का थैंक क्वेश्चन यू ही इतना एवरीवन। माइंड ब्लोइंग था कि मजा आ गया, आगे भी पूछते मीनाक्षी जी रहे। चले गए हैं, She मीनाक्षी just जी चली left. गई, Okay, गाइस मेरा मेरा क्वेश्चन let's आंसर हो leave. गया, आई एम गोइंग, Let's आई एम leave. लीविंग। So she just left. Right? All right, let's wind up with our concluding prayer with folded hands. Sarve, Heetal, would you like to go ahead? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Good everyone. night. शांति। God bless. Love to all of you. God Bye bless. bye. Thank you for your time, Night. Good patience, night. Good night. energies. Good Good night. night. Ratri. Bye, everyone. शुभ रात्रि Bye. सबको। Ratri.